Good morning, sir. Good morning. So today we'll complete डिजिटल कम्युनिकेशन का जो लास्ट पार्ट था वो हम आज कंप्लीट करेंगे. Tomorrow we'll start computer organization. And if time permits, we'll go for some numerical problem solution. So we have started Harman coding in the last class, but we did not complete it. So again, I am just briefing it once again for your understanding. If you have any one doubt, so you can listen once again. So the question is, the example is apply Harman coding procedure for the following message assembly. So this is your messages x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, and we are having corresponding probabilities. Those are 0.4, 0.2, 0.12, 0.08, 0.08, 0.08. These three are having same probabilities, and last one is 0.04. Okay. So you simply arrange in the tabular form all the messages along with their corresponding probabilities. So x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. So these are the messages ensemble, and their probabilities are 0.4, 0.2 in this way, and the last one is of 0.04. Okay, so it is gradually decreasing. Now you have to start the reduction process. This is the method. So think about the last two probability. Think about the last two probability of individual column. देखो ये कॉलम में ये दो को, दिस कॉलम में ये दोनों को, and this column में ये दोनों को, this column में ये दो, and here these two, here these two. So in the last this heap reduction, these 2.6 and 0.4 are coupled together. Makes appear. So now let us start with the first cases. This last two for XC and X7 का probability था यहाँ पे 0.08 and 0.04.
So you simply you group it with 0 and you group it with 1. So this is 0, this is 1. Okay. Now add them. So if you add them, so the result will be 0.12. Okay. So 0.12 that will come to the next column. देखो ये next column में आ गया. So now we have placed it where? देखो ये 0.12 है already और ये 0.08 है. तो एडिशन ये दो ऐड करने के लिए क्या हो गया? एडिशन क्या हो गया? आउटकम क्या हो गया ना? 0.12 हो गया. तो पोजीशन कहाँ होगा? ये एडिशन का जो प्रोबेबिलिटी का जो एडिशन है, वो जो सम है, वो कहाँ पे तुम वो प्लेस करोगे? द पोजीशन मस्ट बी देयर below to the, that means if it is 0.08 and if it is 0.12, so definitely there this is be the position. You can't overwrite it. 0.12, so this exact position is 0.12 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए यू हैव टू प्लेस इन बिटवीन दिस टू. ठीक है ना? 0.08 से ज्यादा और 0.12 इक्वल है, इसलिए ये जस्ट क्लोजली स्पेस्ड है. हाँ, तो ये ऊपर में नहीं लिखेंगे, इसका नीचे में, बिकॉज दिस पॉइंट इज 0.12, तो इसके ऊपर में तुम लिखोगे तो वो 0.12 से ज्यादा हो जाएगा. इसलिए तुम्हारा ये कहना का, मेरा कहने का मतलब है 0.12 जहाँ पे है उस नीचे में ही तुमको ये रखना है. Okay, you can't put it here, so we don't know whether this value is 0.12 because this value must be greater than 0.12. यहाँ पे तुम place करोगे तो this scale must be beyond this value, so that's why you have to place here below to this, though it's the same thing. तो 0.1 यहाँ पे आ गया. नाउ देखो इस कॉलम में लास्ट दो प्रोबेबिलिटी कौन है ना? 0.08, 0.08. अगेन इसको 0, इसको 1 दो एंड मेक इट सम. देखो थर्ड ब्रैकेट में इसको सम बनाना, तो सम क्या होगा? 0.16 होगा. तो देखो ये एडिशन नेक्स्ट कॉलम में आ गया, ये देखो. लेकिन पोजीशन कहाँ है? देखो 0.16. यहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, 0.16 मीन्स 0.12 से ज्यादा और 0.2 से कम, तो बीच में रहेगा. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. सो 0.16 मिल गया हम लोगों को, 0.16 हो गया. ना इस कॉलम में, ठीक है, ये जो सेकंड रिडक्शन में बोल रहा हूँ, इस कॉलम में देखो लास्ट टू प्रोबेबिलिटी कौन कौन है ना? लास्ट टू प्रोबेबिलिटी है 0.12 है, 0.12 है. इसको 0, इसको 1. ओके. 0, 1 में हम लोग एवरी टाइम क्लासीफाई कर रहे हैं 0 लेवल, 1 लेवल, 0 लेवल, 1 लेवल. यहाँ पे भी 0 लेवल, 1 लेवल, कोई डाउट नहीं. नाउ ऐड करो इसको. इसको तुम ऐड करोगे तो क्या होगा? 0.24, 0.24. तो देखो यहाँ पे 0.24 कहाँ आ गया? ये देखो 0.24 यहाँ आ गया. क्यों ये पोजीशन क्यों है ना? ये देखो 0.4 से नीचे है और 0.2 से ज्यादा है, इसलिए बीच में हो गया. नाउ देखो ये जो थर्ड रिडक्शन है, थर्ड रिडक्शन कॉलम जो है, यहाँ पे देखो लास्ट टू, ये लास्ट टू प्रोबेबिलिटी है ना? तो इसको 0, 0.16 को 1 दे दिया, क्योंकि हर टाइम ऊपर ही 0 है, नीचे 1 है, ऊपर 0 है, नीचे 1 है, ऊपर 0 है, नीचे 1 है, ऊपर 0 है, नीचे 1. After coding 0 and 1, you have to add. Okay, so now add this one. 0.2 and 0.16 कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा. तो देखो 0.36 आ गया इधर. 0.36 क्यों 0.36 यहाँ पे प्लेस हो गया? क्योंकि ये 0.4 है, इससे कम होगा, से नीचे हो गया इसलिए, और 0.24 से ज्यादा है इसलिए ये ऊपर में हो गया. तो ये दोनों का बीच में हो गया, 0.4 का और 0.24 का बीच में 0.36 हो गया. ये है इसका पोजिशन. ना यहाँ पे देखो 0.36 और 0.24 ये दोनों को एक साथ में हम लोग कपल करेंगे. तो 0.36 ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला 1 होगा. नाउ ऐड करो इसको, 6 and 4 0, 3, 5 and 1 6, तो 0.6 हो गया. 0.6 देखो 0.6 आ गया.
ये देखो ऊपर में आ गया, क्यों ऊपर में आ गया, क्योंकि ये 0.4 है, तो 0.4 से ज्यादा होगा तो उसका ऊपर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लास्ट रिडक्शन में देखो 0 होगी, ये 1 होगी, इसके बाद इस कॉलम में तो और नहीं है, और तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये 0 1 हो गया, बन गया, ये लास्ट टू था, तो खत्म हो गया। तो इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया ना। उनको कोड कोड लेंथ बनाना है, कोड वर्ड बनाना है अभी। ये रिडक्शन कंप्लीट होने के बाद आफ्टर फिफ्थ रिडक्शन ये कोड लेंथ है, ठीक है। कोड लेंथ मीन ये कोड का लेंथ कितना है, तो पहले तुमको कोड यू हैव टू राइट फर्स्ट कोड। कोड क्या है ये तुमको पहले लिखना होगा, उसके बाद तुमको लेंथ कितना है वो तो काउंटिंग में पता चला गया, उसका लेंथ कितना है वो तो इजी है। तो पहले देखो प्रोबेबिलिटी क्या है तुम्हारा ना, 0.4 है ना, ये तुम्हारा 0.4। तो 0.4 का कोड देखो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो 0.4 का कोड मिल गया। देखो एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, देखो वेरी सिंपल है, थोड़ा सा मन लगा के सुनो। तो 0.4 का कोड क्या है, देखो यहाँ पे 1 है ना, 0.4 का कोडिंग कितना है 1, इसलिए देखो यहाँ पे हम लोग 1 लिख दिए, ठीक है। कोडिंग कितना है 1, 0.4 का कोड कितना है, आइदर 1 और 0 होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 होगा, तो 1। इसका लेंथ कितना है, लेंथ तो 1 ही है, सिंगल बिट है। इसके बाद देखो 0.2, ध्यान लगा के सुनो। 0.2, 0.2 का कोड देखो यहाँ पे देखो 0 है, तो पहले 0 हम लिख के जा रहा है, लिख 0 0.2, ठीक है। 0.2 देखो यहाँ पे एडिशन करोगे तो 0.36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 0.2 ये 0.36 अंदर में भी है, 0.2 का कंट्रीब्यूशन 0.36 में भी है, इसलिए ये भी 0 है। देखो ये 0.36 का कोड कितना है 0, प्लीज लिसन केयरफुली, 0 हो गया। ये देखो 0.36 एंड 0.24 के साथ जो होने से ऐड होने से 0.6, तो ये 0.6 में भी ये 0.2 का कंट्रीब्यूशन है, तो 0.6 का कोड कितना है यहाँ पे 0 है, 0। तो कुल मिला के कितना 0 मिला, 0 0 0, है ना, 0 0 0। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 लिख दो। तो 0.2 के लिए कोड वर्ड क्या हुआ ना, 0 ऑल आर 0 0 0 0, कितना बीट मिला के हुआ 3 बीट मिला के हुआ। तो लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है बाबू, 1 2 3, सो 3, इसलिए 3 लिख दो, करेक्ट। एनीबॉडी हैव एनी डाउट तो पूछ सकते हो ना। देखो और एक एग्जांपल में देते हैं, सबको हम बोल देंगे, किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। 0.12, तो 0.12 के लिए हम लोग सोच रहे हैं 0.12, 0.12 देखो 0.12 का फास्ट यहाँ पे, यहाँ इसी जगह में फास्ट कोड मिला, ये क्या है 0.12 का 0 0 लिख दिया। ना देखो 0.12 0.12 क्या हो गया 4 हो गया, 0.24, 0.24 का कोड कितना है, देखो 1 है, 1 लिखो। और 0.24 यानी 36 के ऐड होगा तो क्या 0.6 होगा, उसका कोड क्या है 0 है, 0 1 0, 0 1 0, देखो 0 1 0 मिल गया, 0 1 0। नंबर ऑफ बीट कितना है 1 2 3, सो 3 हो गया, ठीक है। ये है तुम्हारा 0.12 ना। 0.08 को हम लोग देखें, देखो ध्यान से सुनो, 0.08 ये वाला x4 के लिए, ठीक है। देखो x4 के लिए क्या होगा 0.08, 0.08 का देखो यहाँ पे कोड है कितना, देखो कोड है 0, देखो यहाँ पे 0.08 का कोड कितना है 0। हम कलर चेंज करते हैं, ग्रीन ले रहे हैं 0, ठीक है। ये 0 हो गया, 0.08 एंड 0.08 ऐड होने से क्या 0.16, 0.16 में भी वो कंट्रीब्यूशन है, 0.16 का कोड कितना है यहाँ पे देखो 1 1। अच्छा 0.16 एंड 0.2 ऐड होने से क्या हो गया 0.36 हो जाएगा,
तो 0.36 का कोड कितना है, देखो 0, 010। अच्छा, यहाँ पे ऐड करो 0.36 और 0.24 कितना हो जाएगा, वो 0.6 हो जाएगा। ये कितना है, 0, ये भी तुम 0 लो, तो ये सब इधर से होगा। 0 0 1 0, 0 0 1 0 इधर से, इधर से होता है। इधर देखो एरो दे दिया मैंने इधर से। 0 0 0 1 0, देखो 0 0 1 0 मिल गया। यहाँ पे हम दिखाया तुमको 0 0 0 1 0 इधर से होगा, इधर से इधर। सो 0 0 1 0 मिल गया, कोड वर्ड मिल गया। इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4, इसलिए 4 हो गया। सिमिलरली ये 0.08 के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा बोलो तो, आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी फॉर मेनी केसेस फ्रॉम योर साइड प्लीज एनीवन। हाँ, 0.08 के लिए ये x5 के लिए क्या होगा, x5 के लिए देखो मैंने ये दिखाया 0011, तो कैसे हो गया, कैन एनीवन फ्रॉम योर साइड एक्सप्लेन। 0.08 के लिए देखो मैं तो रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे देखो 0010 होगा, तो 0010 कैसे आ गया फ्रॉम योर साइड, एनीवन कैन एक्सप्लेन। 0.8 देखो यहाँ पे 0.08 है, तो 0.08 का स्टार्टिंग कोड कितना होगा बोलो, ट्राई करो ना। बोलो, कोई एक जन बोलो, शुड आई कॉल योर नेम, आई थिंक खुद से कोई बोलो, सेल्फ डिजायर, कोई बोलो ना, हम तो हेल्प करते हैं। उनको हेल्प करेंगे हम। 0.08 के लिए, ये जो 0.08 है, 0.08 के लिए कितना हुआ, बोलो, कौन बोलेगा। अरे कोशिश करो, टेंशन का कोई बात नहीं, भूल हो सकता है, होगा। सर 0। चलो बोलो, 0.08 के लिए, 0.08 के लिए, ओके। ये सर पॉइंट 0 हो सकता है, 0। देखो यहाँ पे, देखो मैंने बोल दिया 0011 होगा, कैसे होगा ये तुमको बताना होगा, जैसे मैंने बताया तुमको। 0.08 के लिए बोलो क्या होगा फर्स्ट। सर फर्स्ट का ही बोल रही हूँ, 0। नहीं, 0.08 देखो इस लाइन में है ना, 0.08 ये नहीं है, ये तो 0.08 का कोड किया कितना है, यहाँ पे कितना है ये, 1। 1, तो 0 कैसे होगा, अच्छा 1, ठीक है चलो। उसके बाद क्या होगा बोलो, उसके बाद क्या होगा बोलो, स्टार्टिंग मैंने बोल दिया, इस कॉलम में क्या होगा, देखो 0.08 ऐड होगा, 0.16 होगा, होगा ना। 0.08 0.0 ऐड करो, 0.16, 0.16 का कोड कितना है यहाँ पे, देखो ऐड होने से 1 पॉइंट सर। 1, तो सर 1 1 1। 1 1 लिख दिया, ओके। यार यार इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये 0.16 है और ये 0.2 है, ऐड करो तो 0.36 हो जाएगा, ठीक है ना। उसका कंट्रीब्यूशन तो है 0.8 में 0.16 कंट्रीब्यूशन चला गया, 0.16 में 0.3 से कंट्रीब्यूशन जाएगा, सो 0.2 0.16 0.36, तो 0.36 का कोड कितना है यहाँ पे देखो, 0। 0 है, 0 लिखो यहाँ पे। अच्छा 0.36 के साथ 0.24 ऐड होगा, 0.6 होगा, तो 0.6 का कोड कितना है देखो यहाँ, 0। 0। और मैंने क्या बोला, इधर से लिखना होगा,
ये लास्ट वाला जो होगा वही एमएस भी होगा। तो 0011 देखो 0011 में लेंथ कितना है, कितना बीट है, 1 2 3 4 4 है इन दिस में। अच्छा फिर से कोशिश करो x6 के लिए बोलो, x6 के लिए क्या होगा बोलो। x6 0.08 यहाँ पे 0.08 था, यहाँ पे भी 0.08 था, x6 की भी प्रोबेबिलिटी 0.08। ये 0.08 के लिए कोड क्या होगा, कोड देखो तुम्हारा सामने ही है, बस इतना ही तुमको बोलना है कैसे ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये तुमको बोलना है। तो बोलो ये 0.08 के लिए फर्स्ट कोड क्या होगा, हम लिख के जाएंगे, बोलो ना। सर 0 होगा इसका फर्स्ट कोड। फर्स्ट कोड 0 होगा, ये, ठीक है, ये वाला 0, 0 लिख दिया, ये हो गया 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बोलो, इसके साथ इसका एडिशन हो गया 0.12 होगा। सर 0.8 and 0.4 is equals to 0.12. तो 0.12 का कोड कितना है, 1। सर 1 सर। ओके ओके थैंक यू। अच्छा इसी पर देखो ये ऐड होने से 0. ये यहाँ पे आ गया हम लोग, यहाँ पे देखो 0.12 और 0.12 ऐड होने से क्या होगा, 0.24। अच्छा 0.24। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोड नहीं है, 1। इसलिए उस लाइन में तुमको जाना पड़ेगा 1 उसके बाद देखो फिर ये दोनों का ऐड होगा, ऐड होगा 0.6 हो जाएगा, उसका कोड कितना है 0। जी। फिर कहाँ से लिखना होगा, इधर से लिखना है, ठीक है ना, 0 1 1 0। फिर इधर से सेम है लेकिन ये सेम हो गया, लेकिन तुमको इधर से लिखना होगा, राइट से लेफ्ट, 0 1 1 0, 0 1 1 0 मिल गया। नंबर ऑफ बीट कितना है 4, ओके। लास्ट वाला x7 के लिए बोलो, इतना तो बोल दिया, x7 के लिए भी बोलो, x7 के लिए बोलो x7 के लिए बोलो। सर फर्स्ट कोड 1 होगा। फास्ट फूड हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शुरू लिखते जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा 1 होगा, उसके बाद फिर बोलो 1 हो गया, करेक्ट, ये 0.04 1, ठीक है। देन सर इसमें भी 0.08 प्लस 0.04 होगा क्या? कौन सा, ये 0.04 के लिए तुम कर रहे हो है ना, तो 1 हो गया, देखो हाँ यहाँ 1 लिख दिया, उसके बाद बोलो सर अब किसको ऐड करेंगे इसमें? ये दोनों का होगा, ये देखो ये दोनों हर विकेट है ना, तो तो 0.12 सर फिर सेकंड कोड भी 1 ही होगा क्योंकि फिर आफ्टर एड हाँ 0.12 आ रहा था, इसके बाद 1 ही होगा। इसके बाद बोलो ये 1 लिख दिया, इसके बाद सर तो फिर 0.12 फिर 0.12 दोनों ऐड करेंगे तो 0.24 आएगा ना, तो 0.24 फिर 1 है फोर्थ में। उसके बाद हाँ उसके बाद फिर 0.36 और 0.24 को ऐड करेंगे तो 0.6 मिलेगा, तो 0.6 का कोड 0 है। करेक्ट, तो हो जाएगा तुम्हारा 0 1 1 1, देखो 0 1 1 1, यही मैं, ये मेरा एम है। तो कोड, हर कोड वर्ड एंड उसका लेंथ मिल गया, ठीक है। बोलो किसी को, स्टिल आई थिंक डोंट हैव एनी डाउट, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट please me the question, otherwise go for other questions so this way the formula already I mentioned you, I is equal to 1 to 7, कितने मैसेज था, 7 मैसेज था, तो इसलिए 1 to 7 p of xi into n i,
n1 into n3 मिल गया, ठीक है, n1 this n2 n3 n4 n5 n6 n7. So n1 is 1, n2 is 3. In this way it is coming. And probability also already you know, these are the probabilities. These are the probability of 7 individual messages. So here you can easily calculate. Here you can easily calculate. P1 into N1, P2 into N2, P3 into N3, P4 into N4, P5, N5, P6, N6, P7, N7. In this way, you got all the values. You know all the values. So you can easily simplify this. It's a very simple numerical. So 2.48 letters per message. So this is here. So this is the case. Now I'm providing this notes here. So you just go through once again the program note. Okay. If you found any doubt, any problem, so you can tell me the question. So now we'll move for some numericals. Okay. Now we'll go for some numerical problem solution. Everybody write down in your copy. Very simple question I am going to ask you. Very simple question. Everybody will give the answer. No, nobody has a problem. So the first problem is everybody please copy first. If the number of bits per sample, if the number of bits per sample in a PCM system, listen carefully and write down. If the number of bits per sample, number of bits per sample in a PCM system, if the number of bits per sample in a PCM system, हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, if the number of bits per sample in a PCM system is increased, from n to n plus 1. देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में तुम्हारा ग्रुप में दे दिया, but still you try to write down. भेज दिया. देखो if the number of bits per sample in a PCM system is increased from n to n plus 1. पहले n था नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल में, उसको हम लोग इंक्रीज किए हैं n plus 1. सो n से n plus 1 किए. Find the improvement of signal to quantization noise ratio. Find the improvement of signal to quantization noise ratio. तो तुमको पता है signal to quantization noise ratio in dB 1.76 plus 6 mdB. सबको ही पता है 1.76 plus 6 mdB. तो ये n को तुम बढ़ाया, हाउ मच, n to n plus 1. तो n के लेके तुम्हारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो था n plus 1 के लिए भी सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा. n के लिए तुमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालनी है, n plus 1 लेके तुमको सिग्नल टू नॉइज रेशियो निकालनी है. उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट है वो तुमको निकालनी है. मीन्स दोनों सिग्नल टू नॉइज रेशियो को सबट्रैक्ट करना. तो करो, फिर करके मेरे को बोलो इम्प्रूवमेंट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो कितना मिला. फॉर्मूला तो बोल दिया मैंने तुमको 1.76 plus 6 m
This is your signal to quantization noise ratio in dB when you are considering n number of beats per second. n number of beats per second. सर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आया। बाकी सारे लोगों को बोलो, बाकी जो स्टूडेंट को कितना मिला बोलो, फिर हम बोलेंगे आंसर क्या करेक्ट आंसर है। Quickly give please 1 or 2 more students. Or anyone? सर आपको ग्रुप व्हाट्सएप किए देखिए ना, प्रोसेस सही है बनाए तो। प्रोसेस सही है। नीचे वो तुमको ये लिखना होगा s by n, हाँ वो मान लो s by n 1, फिर से दो दो 1 minus 2 लिखना होगा राइट में, ठीक है। एक्सप्रेशन नंबर 1 माइनस एक्सप्रेशन नंबर 2 और एक्सप्रेशन नंबर 2 माइनस एक्सप्रेशन नंबर 1 माइनस करो, ठीक है। तुम्हारा आंसर ठीक। क्या बोला मैंने, समझ गया ना? यस सर। और किसको? अच्छा, और एक प्रॉब्लम 6 करेक्ट आंसर, 6 is the correct answer. Later I will share all the solution. Later I will share all the solution. अच्छा, फिर से हमारे प्रॉब्लम दिए हैं। ये साइनसॉइडल सिग्नल देखो बुक में भी शेयर किए हैं। ये साइनसॉइडल सिग्नल with peak amplitude of 1.536 volt is quantized into 128 levels using a mid-rise uniform quantizer. Find the quantization noise power. तो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर का तुमको फॉर्मूला याद है, कितना होगा? क्वांटाइजेशन नॉइज पावर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग प्रूव किए हैं, लोग प्रूव किए हैं डेल स्क्वायर बाई 12, करेक्ट। डेल स्क्वायर बाई 12। So how to find out del? Del means step size. So, quantization noise power means a square by 12 or del square by 12, isn't it? A square by 12 or del square by 12. A square by 12 और डेल स्क्वायर बाय 12, जो तुम लिख सकते लिखो। और डेल और एस क्या है? स्टेप साइज। एस और डेल वॉट एवर, ये स्टेप साइज। स्टेप साइज तुमको कैसे निकालनी है वो भी तुमको मालूम है। स्टेप साइज कैसे निकालनी है? स्टेप साइज एस इक्वल टू डेल इक्वल टू ट्वाइस वी एम बाय टोटल नंबर ऑफ एल। एल इज टोटल नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल। दिस इज द फॉर्मूला। सो इन दिस वे you find out first step size S using this formula, then power is equal to NQ मान लो, quantization noise power into A square by 12। तो S मिल गया, A square by 12 हो जाने से
क्वांटाइजेशन नॉइज पावर भी निकल जाएगी। पहले स्टेप साइज निकालो, क्योंकि ट्वाइस वीएम तुमको दिया है, पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एल भी दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एस, फिर ए स्क्वायर बाई 12 हो जाने से तुम्हारा पावर भी हो जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट इट एंड टेल मी द रिजल्ट। क्लिक करो, we are having only 3 minutes, 3 minutes 30 seconds. मैंने तो बोल दिया तुमको सब। 1.536 volt. This is your peak to peak voltage. So 1.536 divided by 128. That is your step size. कितना हुआ? हम्म? बोलो। सर स्टेप साइज 1.87 आ रहा है। 1.56 by 120 कितना होगा बोलो? 0.012 1.536 divided by 128. 0.012 volt. 0.012. Okay, 1.536 divided by 128. Okay. Del square by 12, so 0.12 whole square by 12. 0.012 ये एस हो गया, सो ए स्क्वायर बाय 12, ये फाइंड आउट करो कितना हो रहा है। 12 into 2 into 10.5 -6 something like that, this way something like that, हाँ सेम ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा जो बेसिक जो ये है फॉर्मूला है और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसी से तुम्हारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। So in our coming days we'll solve few more numericals. Okay. So नया चैप्टर नेक्स्ट दिन से नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। Tomorrow we'll have class 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। Okay. So आज के लिए इतना ही है।